Hello students, currently we are in lecture 2, session 3 of our chapter surface tension. Lecture number 2 of our chapter surface tension is entirely dedicated to all the concepts related to surface energy. Lecture number 2 has got total 3 sessions, A, B and C. In session A हमने पढ़ा what is surface energy, हमने पढ़ा how to derive relationship between surface tension and surface energy. हमें एक एक्सप्रेशन मिला dW equals to T times of dA. dW equals to T times of dA where T denotes surface tension, dA denotes change in surface area and dW denotes surface energy. In next session यानी सेशन बी में हमने important numericals solve किए based upon the formula dW equals to T times of dA. Right now in session C of second lecture of our chapter surface tension, we are going to solve numericals based upon splitting of bigger drop and formation of bigger drop using the concept of surface energy. पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं एंड देन डेफिनेटली हम वो टिपिकल टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर ही रहे हैं बेस्ड अपॉन splitting of bigger drop and formation of bigger drop. So first of all students, we think it that way. We have a big drop and drop splits into number of droplets. Small drops को हम कहते हैं droplets. Okay. So first case बच्चों, a drop splits up into number of droplets. As per my example, there are total 8 droplets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First case क्या है बच्चों? A drop splits into 8 droplets. Basically a drop, a big drop splits into number of droplets. ये समझेगा? Now as per geometry, when this happens कि एक बड़ा drop जो है वो छोटे छोटे drops में split हो गया, as per geometry, surface area will increase. So work is to be done against surface tension. Let me remind you students, because of surface tension, the free surface of liquid always tend to contract, always tend to decrease its surface area. And students यहाँ पे तो जब एक droplets में convert हुआ, right? So surface area बढ़ा. So work is to be done against surface tension. Now, if work is not done by an external source, the internal energy of the liquid will decrease. Internal energy of the liquid will decrease. Because of that, students, temperature decreases. हमने thermodynamics में पढ़ा है. Internal energy is always directly proportional to temperature. जैसे ही internal energy कम होगा, definitely temperature भी तो कम होगा ना. अब समझेगा बेटा कि spraying करने से temperature कम क्यों होता है? Yes? अच्छा. अब students एक और point मुझे आपके साथ में यहाँ पे discuss करना था. Let's say we are interested in finding out change in सरफेस एनर्जी. देखो बेटा मैं चेंज लिख रहा हूं, इसके दो मतलब हो सकते हैं. इट कैन बी इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी और इट कैन बी डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी. बेसिकली राइट नाउ मैं लिख रहा हूं बच्चों चेंज इन सरफेस एनर्जी. ओके, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसे फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस initial surface energy. So surface energy final minus surface energy initial will give me
change in surface energy. Over here, two cases can arise. First case, beta, if final surface energy is greater than initial surface energy, डेफिनेटली मुझे ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा. इसे हम कहते हैं दैट सरफेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. चेंज इन सरफेस एनर्जी पॉजिटिव का मतलब समझेगा बेटा, सरफेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. सेकेंड केस इसका एग्जैक्टली रिवर्स. इनिशियल सरफेस एनर्जी बड़ा है एज कंपेयर्ड टू फाइनल सरफेस एनर्जी. सो फाइनल माइनस इनिशियल. बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल, इस बार फाइनल छोटा है इनिशियल बड़ा है, सो आपको ये आंसर नेगेटिव मिलेगा. मतलब समझे, चेंज इन सरफेस एनर्जी नेगेटिव, दैट मीन्स सरफेस एनर्जी इज रिलीज्ड. दूसरा केस बच्चों, सरफेस एनर्जी रिलीज्ड. हमारे फर्स्ट केस पे आ जाइए ना बच्चों. अ ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू ड्रॉपलेट्स. मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, and when surface area will increase definitely, yes, when surface area will increase definitely बच्चों, you can use this formula or you can use this concept also. Final surface energy is greater than initial ना बच्चों. यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया इन दिस केस इज ग्रेटर देन इसका सरफेस एरिया. बच्चों सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका मतलब समझे आप, देख लो ना बेटा, सरफेस एरिया ज्यादा मतलब सरफेस एनर्जी भी तो ज्यादा होगा. सो इन दिस केस बच्चों जो सरफेस एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बड़े ड्रॉप का सरफेस एनर्जी. सो द कॉन्सेप्ट इज फाइनल सरफेस एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल सरफेस एनर्जी. फाइनल मतलब ड्रॉपलेट्स का, इज ग्रेटर देन बड़े वाले ड्रॉप का मतलब इनिशियल. अरे समझेगा बेटा, फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल वाला केस हुआ ये, मतलब सरफेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. मैंने कहा सरफेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड. बहुत सुपर्ब कॉन्सेप्ट है बच्चों ये. सो व्हाट इज द पंच लाइन ओवर हियर? व्हेन अ ड्रॉप splits into droplets, overall surface area increases. सरफेस एनर्जी अब्सॉर्ब्ड या रिलीज्ड? अब्सॉर्ब्ड बच्चों. what happens to internal energy? It decreases, and that is the reason temperature has to decrease. that is the reason हम एग्जांपल ले सकते हैं, spraying causes cooling. सेकेंड केस बच्चों एग्जैक्टली इसका रिवर्स. n number of droplets combine to form a single drop. तो इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप. फर्स्ट केस हमारा डिस्कशन अच्छे से हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप बेटा ये वाला. अब दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप. फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप मतलब ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स है ये क्लब होंगे एंड हमें एक बड़ा वाला ड्रॉप मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट वाला मैंने बताया, सेकेंड वाला हम साथ में ट्राई करेंगे बच्चों. n number of droplets club together to form a big drop. So what happens to surface area बच्चों? Surface area will decrease. Yes. सरफेस एनर्जी के बारे में सोचिए बेटा, अब्सॉर्ब होगा या रिलीज होगा? टेल मी. इट विल बी रिलीज बच्चों. सरफेस एनर्जी रिलीज बिकॉज इनिशियल सरफेस एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल ना बेटा. इनिशियल सरफेस एनर्जी यहाँ वाला इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फाइनल यहाँ वाला. इनिशियल सरफेस एनर्जी बड़ा है, फाइनल छोटा है बेटा. इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है, सो सरफेस एनर्जी इज रिलीज्ड. व्हाट हैपेंस टू इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स? internal energy of the liquid will, yes, it will increase, and that is the reason temperature has to increase beta.
सो दोनों केसेस का हमारा डिस्कशन हुआ बेटा, थ्योरी हमने ठीक तरीके से समझ लिया। अब हम इंटरेस्टेड है इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, स्प्लिटिंग ऑफ बिगर ड्रॉप एंड फॉर्मेशन ऑफ बिगर ड्रॉप, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंसिडर इट दैट वे स्टूडेंट्स, ये जो एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया है वो है बच्चों ए एस, एस फॉर स्मॉल आपको याद रहेगा, राइट। एंड ये जो बड़े वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया है वो है बच्चों ए बी, बी फॉर बिग आपको याद रहेगा। सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप ए बी, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, या फिर आप कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रॉपलेट ए एस। बड़े वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया बच्चों ए बी, छोटे वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया बच्चों ए एस। क्या ये टोटल का ए एस है? नहीं, ए एस इज सरफेस एरिया ऑफ वन ड्रॉपलेट बेटा, इतना ठीक है, ओके। रेडियस यहाँ पे बच्चों हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल आर, आपके लिए याद रखना आसान होगा, स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। यहां कंसिडर कर लीजिए बच्चों कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप, बड़ा आर यानी रेडियस ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता हूं, बड़े वाले ड्रॉप का टोटल सरफेस एरिया, सो डेफिनेटली योर आंसर विल बी ए बी, एक ही तो है। नाउ हियर इफ आई आस्क यू टोटल सरफेस एरिया, बेटा टोटल मतलब जितने भी ड्रॉपलेट्स है सबका मिलके सरफेस एरिया कितना है। नाउ कैन आई से स्टूडेंट्स फॉर वन सिंगल ड्रॉप जो सरफेस एरिया है वो है ए एस, ओके। अगर दो ड्रॉपलेट्स है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ ए एस। इफ देयर आर 3 ड्रॉपलेट्स, टोटल सरफेस एरिया 3 टाइम्स ऑफ ए एस। 10 droplets बेटा, total surface area 10 times of AS. 15 droplets, total surface area बेटा 15 times of AS. In my example there are total 8 droplets ना बेटा, so total surface area कितना होगा बच्चों? 8 times of AS. But mind you ये numbers आपको समझाने के लिए दिए जा रहे थे, in general हम लिखने वाले हैं बच्चों n. So यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? Over here this n denotes number of droplets. एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया AS, कितने छोटे ड्रॉप यानी ड्रॉपलेट्स है बच्चों? n. सो टोटल सरफेस एरिया हैज टू बी n टाइम्स ऑफ AS. एंड जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया क्या है बच्चों? AB, इतना ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कैन आई से इन दिस केस सरफेस एरिया चेंज हो रहा है बट मास तो कंजर्व्ड है ना, एंड डेफिनेटली जो डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो बच्चों जो वॉल्यूम है वो भी तो कंजर्व्ड है। ये जो बड़ा वाला ड्रॉप है इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स? टेल मी। वी बी वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वी वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। स्टूडेंट्स एक ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या नाम देंगे? वी एस, एस फॉर स्मॉल ना बेटा। सो कैन आई से टोटल वॉल्यूम अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? टोटल मतलब सारे ड्रॉपलेट का मिलके कितना वॉल्यूम है, तो मैं लिखने वाला हूं उसे वी एस यानी वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, यानी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम एक ना बेटा। ऐसे कितने सारे ड्रॉपलेट से बच्चों? एन। सो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम एन टाइम्स ऑफ वी एस बेटा, टोटल वॉल्यूम। ये हमें ध्यान से समझना था। सरफेस एरिया समझा बच्चों? बड़े वाले ड्रॉप का सरफेस एरिया ए बी, टोटल ये छोटे वालों का सरफेस एरिया, टोटल पे ध्यान देना बेटा, कितना होगा? n टाइम्स ऑफ ए एस। व्हाट इज ए एस? सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप यानी सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉपलेट, इतना ठीक है। अच्छा व्हाट इज वी बी बच्चों? टेल मी। वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। व्हाट इज वी एस? वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप यानी वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम वीएस है। ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स है बच्चों? इन जनरल n, सो टोटल वॉल्यूम हैज टू बी n टाइम्स ऑफ वीएस, इतना ठीक है, ओके।
Students, volume will remain conserved. Volume will remain conserved. Let's say ये जो ड्रॉप है आपके पास यहाँ पे, ये वाला बेटा बड़ा वाला ड्रॉप, उसका वॉल्यूम है 8 ml. सो कांटा ऐसे बेटा, हर एक छोटे वाले ड्रॉप का मतलब हर एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होगा 1 ml. क्योंकि बच्चों टोटल तो 8 है ना, अरे समझेगा. सो 8 ml को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 ml. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं. तो बच्चों यहाँ पे जो मास है वो कंजर्व्ड है, जो डेंसिटी है वो डेफिनेटली कांस्टेंट है. सो कांटा से बच्चों जो वॉल्यूम है वो भी कंजर्व्ड होगा, राइट. सो अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स. मैं लिखने वाला हूं VB इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ VS. समझेगा. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. बेटा 1, समझा ना. VS बेटा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, यानी एक ड्रॉप का, एक छोटे वाले ड्रॉप का मुझे कहना चाहिए, एक छोटे वाले ड्रॉप का मतलब एक ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है वो है VS. वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉपलेट, एक छोटे वाले ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो VS है. कितने छोटे वाले ड्रॉपलेट से बच्चों, n, राइट. सो टोटल वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम n टाइम्स ऑफ VS. सो दिस हैज टू बी इक्वल्स टू VB. ओके स्टूडेंट्स, स्फीयर का मुझे वॉल्यूम यूज करना है, ड्रॉप का शेप स्फेरिकल है, स्फीयर का मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है. मैं लिखने वाला हूं बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब. प्लीज टेक केयर बेटा, बड़ा R लिखना है. वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप VB होगा, राइट. क्या लिखोगे आप उसे, 4/3 पाई आर क्यूब. कौन सा रेडियस बेटा, कैपिटल R. ओके, दैट हैज टू बी इक्वल्स टू n number of droplets as it is multiplied by volume of a small drop. एक छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम बेटा 4/3 पाई आर क्यूब. कौन सा रेडियस बेटा, कैपिटल R या स्मॉल R ओवर हियर. इतना समझेगा. कैंसलेशन कर लेते बच्चों. 4/3 पाई कैंसल हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग capital R over here. Capital R is equals to n raised to 1/3 into small r. You will be getting students. अच्छा स्टेप वाइज करना है क्या. कैपिटल R का क्यूब इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल r का क्यूब. आप दोनों साइड का क्यूब रूट ले लीजिए, आपको मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज्ड टू 1/3 इंटू स्मॉल r. इसका मतलब समझिए आप, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप यानी कैपिटल R इज इक्वल्स टू n का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप. ओके, मतलब जब हम लोग छोटे ड्रॉप के रेडियस को नंबर ऑफ ड्रॉपलेट के क्यूब रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप मिलेगा. और एक बार कर लेते बच्चों, क्या कहा मैंने आपसे, कैपिटल R कैसे ढूंढेंगे, n का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r. इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बच्चों, मैं इस वाले स्टेप को कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r, इस वाले स्टेप को मैं कहता हूं स्टेप नंबर 1 फॉर न्यूमेरिकल्स. ओके, डेटा में बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के सम्स में दोनों में से एक का ही रेडियस दिया होगा, या तो ड्रॉप का रेडियस दिया होगा या तो ड्रॉपलेट का रेडियस दिया होगा. तो बच्चों एक रेडियस के हेल्प से दूसरा रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r, विच कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेप नंबर 1. ओके, अब स्टेप नंबर 2 बच्चों, हमें इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा जाता है सरफेस एनर्जी कितना अब्सॉर्ब होगा एंड सरफेस एनर्जी कितना रिलीज होगा. हमने थ्योरी में पढ़ा ना बेटा, जब एक ड्रॉप स्प्लिट होके हमें ड्रॉपलेट्स मिलेंगे तो सरफेस एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, एंड जब भी ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके बड़ा वाला ड्रॉप बनेगा सो सरफेस एनर्जी विल बी रिलीज्ड. तो बच्चों सरफेस एनर्जी अब्सॉर्ब होगा फर्स्ट स्टेप में.
सेकेंड स्टेप में सरफेस एनर्जी विल बी रिलीज, इतना हम जानते हैं। अब न्यूमेरिकल में पूछेंगे व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट सरफेस एनर्जी, कितने जूल का एनर्जी रिलीज होगा या फिर कितने जूल का एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, इतना समझेगा। तो हमें बेसिकली बच्चों डी डब्ल्यू पूछ रहे हैं, डी डब्ल्यू ही पूछ रहे हैं ना बच्चों, चेंज इन सरफेस एनर्जी, हम इसे डी डब्ल्यू कह सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये जो डी डब्ल्यू है इसका बेसिक फॉर्मूला याद करके बताइए आप मुझे, टी टाइम्स ऑफ डी ए, टी टाइम्स ऑफ डी ए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डी ए। बच्चों टी कौन है, सरफेस टेंशन, व्हाट इज डी ए बेटा, चेंज इन सरफेस एरिया, राइट। तो इसको एक काम करते हैं, सरफेस टेंशन को एज इट इज पुट कर देते हैं इनटू, बच्चों मैं लिख रहा हूं डी ए, डी ए व्हाट इज डी ए, चेंज इन सरफेस एरिया। एंड बच्चों न्यूमेरिकल्स में वी ऑलवेज वांट अ पॉजिटिव आंसर ओवर हियर, सो डेफिनेटली हम करने वाले हैं बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। एंड बच्चों हम जानते हैं जब एक ड्रॉप स्प्लिट होके ड्रॉपलेट में वो कन्वर्ट होगा, सो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी तो बढ़ेगा बेटा, ये हमने थ्योरी में पढ़ा, राइट। तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखो बेटा डी ए, व्हाट इज डी ए, चेंज इन सरफेस एरिया, व्हाट इज डी ए, चेंज इन सरफेस एरिया, ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रॉपलेट यानी ए एस मल्टीप्लाइड बाय एन, सो दिस विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया ना बेटा, सबका टोटल हो गया यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ ए एस में, टोटल सरफेस एरिया बच्चों यहाँ पे टोटल मतलब सारे ड्रॉपलेट का कलेक्टिव सरफेस एरिया कितना होगा, एन टाइम्स ऑफ ए एस, माइनस एज इट इज बच्चों यहां मैं लिखने वाला हूं बेटा ए बी व्हाट इज ए बी, सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप बच्चों, इतना ठीक है। चलिए फॉर्मूला बताइए बच्चों, टी एज इट इज इनटू एन एज इट इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट एज इट इज इनटू बेटा ए एस, व्हाट इज ए एस, सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया, बच्चों स्फीयर है ना ड्रॉप मतलब, मैं सरफेस एरिया यूज कर रहा हूं 4 पाई आर स्क्वायर, ख्याल रहे स्मॉल ड्रॉप यानी स्मॉल आर उसका रेडियस हमने कंसिडर किया है, माइनस एज इट इज बच्चों व्हाट इज ए बी, सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, that can be taken as 4 pi capital R का square, 4 pi capital R का square बेटा, okay, so we get 4 pi into t तो ऑलरेडी कॉमन है ही बच्चों, into में हम लिख रहे हैं एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी डब्ल्यू। बच्चों ये है हमारे लिए स्टेप नंबर 2 का कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल समझेगा बेटा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो किस तरीके से पूछेंगे, आपको पूछा जाएगा हाउ मच सरफेस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, या फिर अगर ये वाला प्रोसेस हो रहा है कि ड्रॉपलेट्स क्लब होके ड्रॉप का फॉर्मेशन हो रहा है तो हाउ मच सरफेस एनर्जी इज रिलीज, क्या पूछेंगे बच्चों, कितना सरफेस एनर्जी अब्सॉर्ब होगा अगर ये फर्स्ट वाला प्रोसेस हुआ तो, एंड अगर ये सेकेंड वाला प्रोसेस हुआ तो आपसे क्या पूछेंगे, कितना सरफेस एनर्जी रिलीज होगा। सो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा सरफेस एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और सरफेस एनर्जी रिलीज, मतलब आपसे डी डब्ल्यू पूछ रहे हैं, फॉर्मूला क्या है बेटा, टेल मी, 4 पाई टी द होल इनटू एन इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, एंड क्या डेटा में मोस्ट ऑफ द सम्स में दोनों रेडियस दिया होगा, नहीं, इसके लिए तो बेटा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल आर इक्वल्स टू एन रेज टू 1/3 इनटू स्मॉल आर, एक रेडियस के हेल्प से पहले दूसरा रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन वी ऑलरेडी हैव एक्सप्रेशन फॉर डी डब्ल्यू, ओके। So I think we had sufficient discussion on this theory and formula, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 100% प्रिपेयर्ड है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।
So we'll start with this numerical from your textbook. Numerical number 20. 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter, coalesce into a single drop. Then find the change in surface energy then surface tension of water is 0.072 Newton per meter. Question number 20 from your government textbook. 27 droplets of water, each of radius 0.1 millimeter, coalesce into a single drop. हमें नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स n दिया हुआ है 27. हर एक छोटा वाला जो ड्रॉप है उसका हमें रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर. कोएलेस यानी बेटा कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप. केस आपको समझा कौन सा है? 27 जो छोटे छोटे ड्रॉप है यानी 27 जो ड्रॉपलेट्स है वो क्लब हो रहे हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन बड़ा वाला ड्रॉप. ओके अच्छा, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी. बच्चों आपसे DW पूछा जा रहा है. DW इज क्वेश्चन मार्क. ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो गया. बच्चों यहाँ पे बोला है चेंज इन सरफेस एनर्जी. अभी हमने थ्योरी में क्लियरली पढ़ा जब ड्रॉपलेट्स को क्लब किया जाएगा एंड बड़ा वाला ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा तो जो एनर्जी है वो रिलीज होगा. सो इंस्टेड ऑफ चेंज इन सरफेस एनर्जी आपको ऐसा भी पूछ सकते थे हाउ मच सरफेस एनर्जी इज रिलीज्ड. समझेगा? ओके इसके बाद देखते हैं बच्चों सरफेस टेंशन ऑफ वाटर T इक्वल्स टू 7.2. I am shifting two places, so 10⁻⁻² Newton per meter as it is beta. Okay. So data है required है and we know the procedure. Right? क्या करना है exactly? तो बच्चों हमें DW find out करना है लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें दोनों रेडियस नहीं दिए हुए हैं. So in our solution first step क्या होगा? To find out capital R using value of small r. Right? So step 1 कैसा होगा बच्चों? Capital R will be equals to n raised to 1/3 into small r. n का वैल्यू बताइए 27. 27 का क्यूब रूट विल बी 3 बेटा. सो 3 into स्मॉल r, छोटे ड्रॉप का रेडियस यानी ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर. So we got capital R equals to यानी radius of that big drop is equals to 3 into 10⁻⁻⁴ meter. Right? Step number 2. DW हमें find out करना है बच्चों. Yes. DW can be taken as is equals to 4 pi t the whole into n r square minus capital R का square. Right? सो DW इक्वल्स टू सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं 4 पाई को लिख रहा हूं 12.57 इंटू सरफेस टेंशन T 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर द होल इंटू n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. n का वैल्यू 27 स्मॉल r का स्क्वायर बच्चों मतलब 10⁻⁸. 10⁻⁴ द होल स्क्वायर 10⁻⁸
minus as it is capital R का square बच्चों. Tell me 3 into 10 raised to minus 4 the whole square, that is 9 into 10 raised to minus 8. Okay, so we get here 12.57 into 7.2 into 10 raised to minus 2. क्या कॉमन है बच्चों? 10 raised to minus 8 कॉमन है दोनों में. सब्ट्रैक्ट करो 27 9 सब्ट्रैक्ट करो you get 18. ओके, सो इसे हम लिख रहे हैं बच्चों 12.57 into 7.2 into 18. This will give you 1629. into में हम लिख रहे हैं 10 raised to minus 10 बच्चों. minus 2 minus 8 minus 10, right? I can shift 3 decimals over here. I can say this is 1.629 into 10 raised to minus 7, right? Shifting 3 places, so it becomes 10 raised to minus 7. dw है बच्चों. So SI unit हमने follow किया है. It will be in terms of joule. So students, dw मतलब change in surface energy, and to be more precise हम कह सकते हैं surface energy released. How much is that? dw equals to 1.629 into 10 raised to minus 7 joule. Okay. Next, numerical students. Numerical 21. A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. Find the work done if the surface tension of mercury is 435.59 per centimeter. Question number 21. A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. It has to be of the same size. Find the work done if surface tension of mercury is 435.59 per centimeter. Find the work done. So basically हमसे dw पूछा जा रहा है. dw is question mark requirement. डेटा में सबसे पहले हमें दिया हुआ है बच्चों रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज टेकन एज 2 into 10 raised to minus 3 मीटर. अच्छा बच्चों, ये ड्रॉप का रेडियस है या ड्रॉपलेट का? ड्रॉप का रेडियस है ना, ये बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका रेडियस है ये. तो रेडियस होगा बड़ा आर, कैपिटल आर, 2 into 10 raised to minus 3 मीटर. आगे पढ़ते हैं. How many droplets? 8 droplets. n का वैल्यू बच्चों 8. Surface tension T is also given to you 435.5
dyne per centimeter, that can be taken as 10 raised to minus 3 न्यूटन पर मीटर। सारे वैल्यूज प्रॉपर फॉर्म में है, एसआई यूनिट में है। ओके, तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वर्क डन, बट हमें पता होना चाहिए दैट व्हेनेवर अ ड्रॉप splits into droplet, surface energy is absorbed. So instead of asking it this way, work done is question mark, आपसे क्या पूछ सकते थे, सरफेस एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज हाउ मच, आपको सॉल्व वही करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोनों रेडियस के बीच जो हमारे पास रिलेशन है उसे यूज करेंगे। स्टेप नंबर 1 बच्चों, कैपिटल R इज इक्वल्स टू n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल r। इस बार हमारे पास कैपिटल R का वैल्यू है, सो स्मॉल r नहीं है, हम कह सकते हैं स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइड बाय n रेज टू 1/3। कैपिटल R स्टूडेंट्स 2 इंटू 10 raised to minus 3 meter divide by n raised to 1/3। n का वैल्यू 8, 8 का क्यूब रूट 2, 2 gets cancelled, you get here 1 into 10 raised to minus 3 meter। आपको बच्चों स्मॉल r मिल गया 1 into 10 raised to minus 3 meter। स्टेप नंबर 2, dw का फॉर्मूला, dw is equals to 4 pi t the whole into n into small r square minus बच्चों कैपिटल R का स्क्वायर, राइट। सो दिस कैन बी टेकन एज 4 पाई यानी 12.57 into surface tension T 435.5 into 10 raised to minus 3 न्यूटन पर मीटर, the whole into n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। n का वैल्यू बच्चों 8 इंटू में स्मॉल r का स्क्वायर, बच्चों स्मॉल r है आपके पास उसका स्क्वायर कर लो, 1 into 10 raised to minus 3 the whole square, you get 1 into 10 raised to minus 6 minus as it is capital R square 2 into 10 raised to minus 3 the whole square, you get 4 into 10 raised to minus 6। सिंप्लीफाई करना है इसको आगे, 12.57 into 435.5 इंटू बेटा मैं इन दोनों में से 10 raised to minus 6 कॉमन ले रहा हूं। ऑलरेडी वी हैव 10 raised to minus 3 minus 6 will become 10 raised to minus 9, 8 4 सब्ट्रैक्ट करो बेटा 4, ठीक है ना। सो टोटल क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 12.57 इंटू 435.5 इंटू 4 इंटू 10 raised to minus 9। सो हम इसे लिख सकते हैं 2.19 इंटू 10 raised to minus 5 जूल। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, लॉग बुक यूज करना पड़ेगा। यू गेट dw इक्वल्स टू 2.19 into 10 raised to minus 5 जूल। वर्क डन इन दिस प्रोसेस हमें dw मिल गया 2.19 into 10 raised to minus 5 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, दिस वन इज एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। A mercury drop of radius
0.5 centimeter falls from a height on a glass plate and breaks up into a million droplets. All of the same size. Then find the height from which the drop must have fallen. ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इक्वल्स टू 13,600 kg per meter cube and surface tension of mercury is equals to 0.465 Newton per meter. A mercury drop of radius 0.5 centimeter falls from a height on a glass plate and breaks up into a million droplets. All of them are of same size. Find the height from which the drop must have fallen. Height find out करना है जहां से वो ड्रॉप गिरा होगा. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी का वैल्यू एंड सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दोनों हमें दिया हुआ है. So this numerical is little bit different than previous two numericals. इसमें हमें DW नहीं पूछा है, इसमें हमें height पूछा जा रहा है from which the drop must have fallen. So this numerical has got something extra to do. डेटा से स्टार्ट करते हैं. बच्चों हमें रेडियस ऑफ ड्रॉप यानी कैपिटल R दिया हुआ है 0.5 centimeter which can be taken as 5 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, falls from a height on a glass plate and breaks up into a million droplets. Number of droplets बच्चों 1 million, that is 10 lakh, that is 10 raised to 6. आगे all of them are of same size. Find the height from which the drop must have fallen. So requirement लिख देते हैं बच्चों. Height h जो हमें find out करना है, h is equals to question mark. Then density of mercury, row students, 13,600 kg per meter cube. Then surface tension T दिया हुआ है मर्क्यूरी के लिए 0.465, मैं एक डेसिमल शिफ्ट करके लिख रहा हूं 4.65 into 10 raised to minus 1 न्यूटन पर मीटर एज इट इज. डेटा प्रॉपर फॉर्म में है, राइट. तो बच्चों हमारा ड्रॉप स्प्लिट एंड ड्रॉपलेट्स कॉम्बिनेशन वाला जो स्टैंडर्ड 2 स्टेप्स है वो तो करना ही है. स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. कैपिटल आर स्टूडेंट्स is equals to n raised to 1 by 3 into small r, right? So small r को हम लिख सकते हैं कैपिटल R डिवाइड बाय n raised to 1 by 3. कैपिटल R का वैल्यू, ड्रॉप का रेडियस 5 into 10 raised to minus 3 मीटर, द होल अपॉन बच्चों n raised to 1 by 3. 10 raised to 6 का क्यूब रूट, that will be 10 raised to 2. टोटल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 5 into 10 raised to minus 5 ना बेटा, minus 3 minus 2 minus 5, राइट.
So we get small r equals to 5 into 10 raised to minus 5 meter. Step number 1 done. स्टेप नंबर 2 बच्चों, वर्क का फॉर्मूला, dw का फॉर्मूला होता है 4 पाई t द होल इनटू n इनटू स्मॉल r का स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर. सो क्या मैं यहीं पे वैल्यूज डालना स्टार्ट कर दूं? जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि वैसे भी हमें dw नहीं पूछा है, राइट. सो ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है. dw हम पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर h फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. सो हम यहीं पे स्टेप नंबर 3 बच्चों पुट कर देते हैं. स्टेप नंबर 3 यहीं पे हम लोग पुट कर देते हैं. बच्चों हमें हाइट फाइंड आउट करना है फ्रॉम विच द ड्रॉप मस्ट हैव फॉलन. स्टूडेंट्स, हाइट जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कौन सा एनर्जी आता है? पोटेंशियल एनर्जी आता है या काइनेटिक एनर्जी? टेल मी. इट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स mgh. अगर हमें रिक्वायरमेंट वेलोसिटी का होता तो मैं यूज करता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, यहाँ मुझे हाइट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहा हूँ mgh. नाउ स्टेप नंबर 4, मैंने कहा बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रीवियस दो न्यूमेरिकल से थोड़ा अलग है. हमें तो हाइट एच फाइंड आउट करना है. तो बच्चों अभी मैं यूज करने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, potential energy should be equals to dw, right? Students, potential energy यानी mgh equals to dw. बच्चों यहां से सब्स्टिट्यूट कर लो आप स्टेप 2 से. 4 पाई t द होल इनटू एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर. ठीक है, ये इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम. m इंटू जी इंटू एच, हमें h फाइंड आउट करना है. तो बच्चों h को हम लिख लेंगे 4 पाई t द होल इंटू n स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर. द होल अपॉन बच्चों mg में डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर रहा हूं. mg ना बेटा, m फॉर मास. मास को स्टूडेंट्स हम लिखने वाले हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ड्रॉप का वॉल्यूम, स्फेरिकल मेम्ब्रेन का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. एडवांटेज ये होगा बच्चों, हमें डेटा में आप देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, मास तो दिया ही नहीं, राइट. सो रो को हम यूज कर पाएंगे. एंड वन मोर थिंग, यहां से बेटा 4 पाई कैंसिल कर लो. सो यू कैन से h इक्वल्स टू 3 goes up, you get 3 times of t the whole into an r square minus capital R square. the whole upon हम लिख पाएंगे बेटा रो एज इट इज कैपिटल R का क्यूब इंटू g. तो बच्चों अभी हमारे पास फॉर्मूला रेडी है. h का फॉर्मूला 3t the whole into n r square minus capital R का स्क्वायर the whole upon रो r cube g, right? Let me erase this. ओके, सो h का फॉर्मूला रेडी. चलिए एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों. h इक्वल्स टू 3t वी हैव सबसे पहले 3 एज इट इज इनटू t बेटा सरफेस टेंशन t. हाउ मच इज दैट? 4.65 into 10 raised to minus 1, right? Into n small r square minus capital R square. n बेटा 10 raised to 6 into small r का स्क्वायर. स्मॉल r का स्क्वायर बच्चों 25 into 10 raised to minus 10, माइनस का साइन एज इट इज. कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R बच्चों 5 into 10 raised to minus 3 मीटर है, होल स्क्वायर करना है आपको. You get 25 into 10 raised to minus 6. Okay, the whole upon रो का वैल्यू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600
kg per meter cube into beta capital R का cube 5 into 10 raised to minus 3 meter the whole cube beta you get 5 का cube पहले 125 into 10 raised to minus 3 का cube 10 raised to minus 9 into beta small g acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. Okay, सबसे पहले 3 into this 4.65 will give you 13.95 into 10 raised to minus 1 as it is. We can take 25 common from these two terms. Into we get 10 raised to beta 6 minus 10 raised to minus 4 minus of 10 raised to minus 6 as it is. The whole upon I can say 13,600 into 125 into 9.8 into 10 raised to minus 9. कुछ cancel हो रहा है बेटा 25 125 it will go 5 times. Yes, okay, then we get 13.95 as it is into बेटा आप इसको 10 raised to 8 कर लीजिए ना 10 raised to minus 9 goes up becomes 10 raised to plus 9 9 minus 1 beta 8 10 raised to 8 into from these two terms I can take 10 raised to minus 6 common. Yes, so inside the bracket मैं लिख सकता हूँ 10 raised to 2 minus 1 very important step the whole upon बच्चों 13,600 as it is into बेटा 5 into 9.8 कितना हो जाएगा 49. ये समझेगा ना out of these two terms I have taken 10 raised to minus 6 common so inside the bracket what I get 10 raised to 2 minus 1 beta because 10 raised to 2 minus 6 will give you 10 raised to minus 4 minus 1 क्यों आया क्योंकि मैं 10 raised to minus 6 common ले चुका हूँ. Okay, so ये total हो जाएगा 13.95 into 100 minus 1 बेटा ये 99 into 10 raised to 2 10 का पावर 10 raised to 2 यहाँ पे the whole upon I get 13,600 into 49 10 raised to 2 and these two zeros will cancel out. हम लिख सकते हैं इसे 13.95 into 99 the whole upon 136 into beta 49. This total will be 0.2072 meter. So students, this is the height from which the drop must have fallen 0.2072 meter. It was a fantastic numerical. So with this we completed surface tension lecture 2 session C. Lecture 2 of surface tension contains lots of concepts related to surface energy. That is the reason मैंने उसे 3 सेशंस में स्प्लिट किया. lecture 2 सेशन A, lecture 2 सेशन B and हमारा ये वाला सेशन lecture 2 का सेशन C. I hope all the 3 sessions will be helpful to you and next time यानी चैप्टर के 3rd लेक्चर में हम जब मिलेंगे we will be studying angle of contact.